Assalamu alaikum. I'm Bakhtavar and I'll be taking your English for grade 4. Today we are going to learn a comparison between two creative writings. One is essay writing and the other one is story writing. So both includes your creativity. First of all, while doing an essay writing, first thing that we do is to make an outline. What does an outline mean? Outline is that before writing an essay, keep a rough page with you or write on the back of the page or use some extra page. Then if you are making an outline, you will jot down all the points gradually that you are going to discuss in your essay. You know what benefits it is going to give you. First of all, it will be benefiting you while taking your less time and securing your time while essay writing. You will not need a lot of time while writing your essay and just start thinking, and then you start writing, then you think. Obviously it is going to consume your time more. Alright, so when you will make an outline, it is going to give you more time to think and go through your whole essay again after winding up your essay writing. First of all, after writing outlines, writing the whole essay detail title wise on one page, or like writing the topics that you are going to discuss in your essay on one page. After doing this, when you start writing an essay, you will give some sort of introduction. For example, we have an essay, My Computer. First of all, while giving introduction of 2 to 3 lines, you will discuss about computer. What is a computer? It's a gadget. You use it in the offices, in the schools, at homes. And the computers have been now replaced with the laptops or cell phones, smartphones. People are using computers in their phones. They are handy now. Whatever you feel like writing, you will just give the introduction, explanation. Then this is the point number 3. In explanation, you will tell how are we using computers in our life. What benefits are they bringing to the table? हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कंप्यूटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह की वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं. हम उसमें वर्ड यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसके हार्डवेयर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं. हम कंप्यूटर पे बैठे पूरी दुनिया को देख सकते हैं. हम यहाँ बैठे सऊदी अरब में देख सकते हैं. जब आप देखें हज हो रहा होता है, हमारी टीवीज़ पे हम देखते हैं कैसे हाजी हज कर रहे हैं. हम अपने सब टीवीज़ पे मोस्टली मुस्लिम्स ने लगाए होते हैं टीवीज़ उस टाइम. इस तरह से हम घर बैठे वहाँ देख लेते हैं दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है. फिर आ जाता है जी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट. इसमें आपने बताना है कि जो हम जिस तरह से गैजेट्स को इनकलकेट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, व्हाट बेनिफिट्स आर दे ब्रिंगिंग टू द टेबल. हमें उससे क्या बेनिफिट हो रहा है. आर दे गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स, या सिर्फ नुकसान ही हो रहा है हमें, या हमें दोनों हो रहा है. अब ये एक राइटर पे जो लिख रहा होता है उसकी अपनी अप्रोच पे भी बहुत मैटर करता है. और आप तब इस काबिल होंगे जब यू स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल्स और यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, पोइम्स पढ़ा करें. आप विकीपीडिया पे डिफरेंट चीज़ें सर्च किया करें. जो भी आपको लगता है कि हॉट न्यूज़ है, कोई भी पॉलिटिकली या वेदर चेंज या वॉल्केनो डिस्ट्रप्शंस, कुछ भी. कार्टून्स में आप देखते हैं कि उसने ये गैजेट यूज़ किया है, आप गूगल करें, इस गैजेट के बारे में पढ़ें. सो दैट आपका क्या होगा, इन सोर्सेज से नॉलेज बढ़ जाएगा. उसके बाद आप बताएंगे यूजेस या लॉस कि सोसाइटी में, अगर मैं अभी पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ माई कंप्यूटर टॉपिक की, ऐसे हर टॉपिक के ऊपर ये सारे पॉइंट्स आते हैं. लिखना अपने अकॉर्डिंग है. कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, हमें उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, हमें उसके नुकसानात भी बहुत हैं. तो अगर आप 3 लाइन्स फ़ायदे की लिख दें, 3 लाइन्स आप नुकसान की लिख दें, तो वो भी सम अप करता है, एक अच्छी लेंथ बन जाती है. आपने जब ऐसे लिखना है, सबसे पहले तो ऐसे टाइप देखनी है कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है. ये जब आप पढ़ेंगे करिकुलम आगे आपको पता लगेगा टाइप्स क्या होती हैं. इस ऐसे में या कोई भी आप ऐसे लिखते हैं, उसमें आपने जो सारा कुछ लिखा, उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपने वो भी लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसे लगता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों में एक पॉजिटिव चेंज लाया है. और उससे ये हुआ है कि चीज़ें अप्रोचेबल हो गई हैं. डॉक्टर्स, क्लाइंट्स, चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, LMS, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन किस लिए हैं, जस्ट बिकॉज दैट वी हैव कंप्यूटर्स एवरीवेयर. कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सेल फोन्स, ये दिस इज़ द सेम जॉनरा. अपना कन्विंसिंग पॉइंट अपने स्टेटमेंट के मेरे नज़रिए से, मेरी नज़र में ये ऐसे है, वो लिखने के बाद आपने अपना ऐसे अच्छे वर्ड्स में कंक्लूड कर देना है. यहाँ आपका ऐसे ख़त्म हो जाता है. फिर हमारे पास आता है स्टोरी राइटिंग. अब स्टोरी राइटिंग ऐसे राइटिंग से
डिफरेंट है, दीज टू थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट देन ईच अदर। हमारे पास ऐसे राइटिंग में सबसे पहले आउटलाइन आती है, स्टोरी राइटिंग में हमारे पास आता है प्लॉट। ऐसे राइटिंग में हमारे पास आता है जी इंट्रोडक्शन, स्टोरी राइटिंग में हमारे पास आते हैं कैरेक्टर्स। ऐसे राइटिंग में हमारे पास आता है एक्सप्लेनेशन, स्टोरी राइटिंग में आता है स्टोरी डेवलपिंग। अब आप देखें दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आप जब भी स्टोरी लिख रहे होते हैं 95% ऑफ द टाइम्स स्टोरीज आर रिटन इन द पास्ट टेंस। ऐसे आप पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, ऐसे आप फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, ऐसे आप प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक क्या है आपका। अगर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं हाउ वॉज योर समर वेकेशन, फॉर इंस्टेंस दिस इज़ योर एसे इन योर ग्रूमिंग स्किल्स और योर एग्जाम्स, हाउ वॉज योर समर वेकेशन। अब ये तो बात टॉपिक से हमें पता लगती है कि ये पास्ट की बात है, तो हम इसको जवाब भी पास्ट में ही देंगे, ठीक है। एंड हाउ विल यू स्पेंड योर समर वेकेशन अगर आ जाता है कि आप अपनी समर वेकेशन कैसे स्पेंड करेंगे, सो इट इज़ क्वाइट सीन फ्रॉम द टॉपिक्स नेम दैट वी आर गोइंग टू गिव द आंसर इन द फ्यूचर टेंस, क्योंकि हमसे फ्यूचर में ही बात पूछी गई है, ठीक है। उसमें आप कहीं अपना पुराना एक्सपीरियंस डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद जब भी आप ऐसे लिखते हैं कोशिश करें उसमें कोटेशंस ऐड करें, विजडम, वर्ड्स ऑफ विजडम वो इस्तेमाल करें, फिलोसफर्स की, साइंटिस्ट्स की, टीचर्स की, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं गुजरे हैं, उनके कोट्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐड करें, इट विल गिव ए नाइस पिक्चर ऑफ द ऐसे। अच्छा, अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे स्टोरी राइटिंग की। सबसे पहले प्लॉट आता है। स्टोरी में आप पहले बताते हैं स्टोरी कहाँ टेक प्लेस करी है, आपका सराउंडिंग्स क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, आप पहले उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टर्स। आपके स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स होंगे और हर कैरेक्टर के एडजेक्टिव्स क्या होंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। कोई ऑब्वियसली नॉटी होगा, कोई फ्यूरियस होगा, कोई इररिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर होगा, कोई सीरियस कैरेक्टर होगा। फिर आ जाते हैं आपके कैरेक्टर्स। जब आपके कैरेक्टर्स आप डिसाइड कर लो एक स्टोरी पे कि मैंने स्टोरी एक स्कूल में समझ लें होंगी या समझ लें एक ग्राउंड में होगी या किसी मॉल में स्टोरी होगी, आपने उसका प्लॉट दे दिया जगह, फिर आपने कैरेक्टर्स बताए कि इसमें 5 कैरेक्टर्स होंगे या 4 कैरेक्टर्स होंगे। जैसे अनांसी एंड 5, ये एक विलेज में टेक प्लेस की। विलेज क्या था? प्लॉट था। कैरेक्टर्स उसने बता दिए, अनांसी, मिसेस श्रू, 6 कैरेक्टर्स थे उसमें, मिसेस रैबिट और ये सारे 5, ये सारे कैरेक्टर्स क्या थे? स्टोरी के कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने बताए। फिर स्टोरी डेवलपिंग आ जाती है हमारी। स्टोरी डेवलपिंग में क्या होता है, आपने पहले स्टोरी स्टार्ट करनी होती है। जब आप स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा माहौल के बारे में बताते हैं, कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, सबको एकदम से इन्वॉल्व नहीं कर देते, 1 बाय 1 उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टोरी के अंदर। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर आपका स्टोरी का क्लाइमैक्स आ जाता है। जब आपकी स्टोरी स्मूथ लाइन पे, लो पेस पे चल रही होती है, फिर आता है क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स के बाद आपकी स्टोरी में प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी राइटर ने देना होता है। हर स्टोरी जो भी आप पढ़ें अभी तक आपने लिटरेचर में, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टोरीज इन योर लिटरेचर। दैट वाज अनांसी एंड 5, दैट वाज पिप मीट्स द कॉन्विक्ट, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टोरीज इन योर बुक। आप उनको अगर थोरली पढ़ें तो यू विल कम टू नो कि उनमें प्रॉब्लम भी दिया है और फिर उनमें सॉल्यूशन भी दिया है, और सॉल्यूशन देने के बाद स्टोरी वाइंड अप कर दी गई है। ठीक है, तो स्टोरी का मकसद ये होता है कि उसमें प्रॉब्लम आई, फिर आपने उसका सॉल्यूशन दिया कि ये मसला हो गया था, ऐसे हो गया था, फिर ये किया, फिर आप जब प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस देते हैं ना, और क्लाइमैक्स जब आता है तो आपने डिटेल भी देनी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होती है। डिटेल ऐसे कि रात का वक्त था एंड द बर्ड्स वर चिर्पिंग, द मैन वाज एबल टू लिसन टू द साउंड ऑफ द विंड्स एंड द साउंड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर एंड द लेक्स। आपने इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना है स्टोरी में, छोटी छोटी डिटेल्स बता के कि द डोर वॉज ओपन एंड व्हेन समवन केम इनसाइड एंड दे ओपन द डोर, आई कुड लिसन टू द स्क्रीच ऑफ द डोर एंड आई वाज सो मच फ्राइटेंड, आई हिड माई सेल्फ अंडर द ब्लैंकेट एंड इट वॉज अ डार्क रूम फुल ऑफ darkness and like full of plenty of the things, like you can write plenty of the things on one topic. आपने इस तरह से जो है इसको लेके चलना है। स्टोरी में जितनी डिटेल आप ऐड करोगे उतना जो है आपके रीडर के लिए, आपके लिसनर के लिए वो इमेजिन करेगा, और जब वो आपकी स्टोरी इमेजिन करेगा तो ज़्यादा बेहतर। एक अच्छे राइटर की यही निशानी है कि उसकी राइटिंग स्टाइल में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग होती है स्टोरी में कि जैसे जैसे कोई पढ़ रहा होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व क्यों होता है? क्योंकि उसकी इमेजिनेशन में वो चीज़ बनना शुरू हो जाती है कि अच्छा अंधेरा था, सितारे नज़र आ रहे थे, शेरों की आवाज़ आ रही थी, इस तरह की डिटेल्स। उसके बाद फिर आपने प्रॉब्लम देनी है, फिर उसका सॉल्यूशन देना है, फिर आपने सॉल्यूशन देके एंड कर देना है।
ठीक है। कभी कभी ये होता है कि प्रॉब्लम तक देके आप तब भी ख़त्म कर सकते हो, फिर रीडर भी होता है कि वो इसको कैसे एज्यूम करेगा कि इसको ना ऐसे होना चाहिए था। अक्सर आप देखें ड्रामाज में, नॉवेल्स आप पढ़ते हैं, आधे ख़त्म हो जाते हैं, क्यों? स्टोरीज ख़त्म हो जाती, ताकि रीडर बताए कि अगर यहाँ पे ये हो जाता ना तो ये बेहतर था, ताकि आप सोचें, टू प्रोवोक योर थिंकिंग पैटर्न्स। इस तरह से स्टोरी आप लिखते हैं, स्टोरी में डिटेलिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह इवन ये भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं तो आप कहेंगे आई वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एंड आई स्टेप on the leaf and I could listen to the sound of the leaf in my ear and it was so quiet and it was a very quiet atmosphere that I could even listen to the sound of the leaf under my feet। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक पत्ते तक की आवाज़ आई, मुझे एक इंसेक्ट की आवाज़ आई, मुझे कुकू की आवाज़ आई, मेरे हाथ में पेन था वो गिरा, मुझे उसकी आवाज़ आई, और आवाज़ आई तो उससे एक परिंदा उड़ा। मतलब इस तरह से आपने उसकी डिटेलिंग ऐड करनी है कि पढ़ने वाले के जहन में साथ नक्शा उसका बनता जाए। तो जितना अच्छा इमेज आपकी स्टोरी से डेवलप होगा उतने अच्छे राइटर आप होंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। दीज आर द पॉइंट्स इन योर essay writing techniques and these are the points in your story writing techniques. I think I have elaborated you much for your creative writing skills, and even still if you have any questions you can contact your in charge and ask through your teacher. I hope that you are going to practice this as much as you can. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे that you are not going to have the hands on experience on your grammar skills. आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आपको स्किल्स आएंगे, अदरवाइज आप ग्रामर में थोड़े से बैक स्टेप पे रहेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करें, स्टोरीज़ बनाएं, खुद से डेवलप करें, एसेज खुद बनाएं, खुद से डेवलप करें, क्योंकि आपको इतना अपने आप को इसमें मैच्योर करना है, इसमें इतना अपने आप को बेहतर करना है कि अगर कोई चीज़ अनसीन आ जाती है, आप कहते हैं कि हमें तो ये, मैंने तो नहीं देखा था कि ये था। इवन इफ़ देयर इज़ समथिंग, समवन आस्क्स यू टू राइट समथिंग अबाउट ऐसी कोई चीज़ जो आपने पढ़ी ही नहीं, तो आपका फ्रेंड कह दे, कोई टीचर कह दें, कोई आपकी ट्यूशन टीचर, कोई भी कह दे, तो आप क्या कहेंगे? आप लिखेंगे, आप क्विट नहीं करेंगे। आप क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको आता है इसलिए। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग इट। थैंक यू।